This call is now being recorded. अभी मेरे को पता नहीं था रिकॉर्डिंग चालू है अब सॉरी रिकॉर्ड हो जाए ये मेरे को बच्चे पता नहीं था मतलब ओके चलिए मतलब कभी करता नहीं okay so we should start now so till date we have discussed about the mechanism of laser. So here we start from that ground state E1 to that higher energy level E2, and we have the population. Now I am using that laser terminology discussed in the last class. So here in the population in the ground state is N1. By using a proper pumping technique, when we give energy, this energy is Q nu. So to absorption transition. Out of N1 atoms, out of N1 population, N2 populations are excited up to higher energy level. And total number of absorption transition we have discussed as equal to that is B12 with that energy terms and the delta T with N1. And here its lifetime is only 10 to the power minus 8 seconds. So after this, there is some probability of spontaneous transition. So the second type of transition we have discussed this is spontaneous transition, and the total number of spontaneous transition this is equal to A21, there is no energy term, delta T multiplied by N2. And due to this spontaneous transition we get so many numbers of photons, but we cannot use these photons as laser because all these photons are random photons. So there is a need to control this process, and in order to control this process, we give that additional photon to the atoms of higher energy level. Then stimulated transition starts. Okay, so in the ground state we have N1 population. By giving the energy using proper pumping technique, out of N1 population into populations are excited to higher energy level, and we have this absorption transition. And after transition at second, the spontaneous transition is possible. So this is uncontrolled process. So to make these photons useful, we need to control this process. So we give this additional photon to the atoms of excited state, and then we have the third type of transition, which is the very important one, that is stimulated transition. And the total number of stimulated transition it is known by three parameters, that energy given and the time up to the energy given, as well as the total number of atoms present at the excited state with that Einstein's coefficient B21. So we have this three types of Einstein's coefficient, and all these Einstein's coefficient will have the probability of concerned phenomena. So this is the total probability. And then we also discussed about the conditions of obtaining laser. So the conditions for obtaining laser we have two conditions. First is that the energy value, given energy value must have a very high value. So we have to give abundant amount of energy to pump these atoms. And the second, that N2 must be greater than N1.
तो हायर एनर्जी लेवल पर लोअर एनर्जी लेवल से ज्यादा एटम होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन इज आल्सो नोन एज population inversion condition. This is known as population inversion condition. And we have discussed in the last class that why this is known as population inversion condition, because in equilibrium at ordinary temperature and pressure, pressure, this N1 is always less than N2 in ordinary conditions. So since the ordinary condition is just N1 is greater than N2, but what we need the reverse of this. So this N2 must be greater than N1. This is known as the population inversion condition. Then in the laboratory level, we were trying to fulfill these two conditions. अगर हमें लेजर बनाना है तो ये दोनों कंडीशन एसेंशियल कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सो लैबोरेटरी लेवल पर हम ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे। So first condition can be easily fulfilled by using different pumping techniques. So this is fulfilled by using different pumping techniques. So we have discussed different pumping techniques in the last class, depending on types of laser. If you are using, we have solid state laser. यदि हम solid state laser use कर रहे हैं, तो solid state laser में flash tubes, xenon or radon flash tube use करते हैं. अगर gaseous laser है, then we have to use that electric arc method. And for semiconducting type laser, just the direct conversion of electrical energy is taking place to that light energy or laser energy. So the first condition easily fulfill कराया जा सकता है. Then हमारा discussion शुरू हुआ था second condition पर. इसको fulfill करने के लिए हमारे पास कुछ mathematical output हमारे पास था. N1 by N2 is equal to exponential of E2 minus E1 by 2t. So this E2 is greater than E1. That's why this N1 is always less than N2. ये mathematically Boltzmann statistics से हमारे पास आया था कि N2 का मान N1 से ordinary temperature condition पे ordinary pressure पे this will be the output. But we need N2 must be greater than N1. तो एक solution हमारे पास mathematics वाले ने सुझाया था कि temperature T negative कर सकते हैं, but this is not possible as far as the physics is concerned. Because temperature T, this is in Kelvin, और Kelvin जो है वो negative नहीं होता. The minimum value in the Kelvin scale, that is 0 Kelvin, that is the absolute temperature. So negative temperature is not possible. Then we try to enhance the lifetime of this atoms at higher energy level. क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ग्राउंड स्टेट से एटम हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, कंडीशन फुलफिल करने के लिए आधे से अधिक एटम हायर एनर्जी लेवल पे होना चाहिए. तो आधे से अधिक एटम जब तक पहुंचे, उससे पहले ऊपर वाला जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट पे आने लगता है. तो ये ग्राउंड स्टेट पे जब वापस आ जाता है तो ऑब्वियसली आधे से अधिक एटम नहीं पहुंच पाएगा. और इसका एकमात्र कारण यही है कि यहाँ पर उसका लाइफ टाइम की जो वैल्यू है वो बहुत कम है, 10⁻⁸ सेकंड. तो एक सॉल्यूशन जो हमारे पास आया था कि हम किसी तरह से इस लाइफ टाइम को बढ़ाएं, और इसके लिए हम लोगों ने हाइजेनबर्ग रिलेशन को यूज किया था. वी हैव दिस डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ई, इट इज इक्वल टू x क्रॉस बाय 2. दिस द रिलेशन. So this is delta t, this is equal to x क्रॉस by 2 multiplied by delta e. This is the relation. So if we want to enhance the lifetime of that atom at higher energy level, then we have to reduce this energy difference between these two levels. यदि हम ये चाहते हैं कि हायर एनर्जी लेवल पर लाइफ टाइम अगर बढ़े, तो ये जरूरी है कि इन दोनों लेवल के बीच का गैप है वो कम होनी चाहिए. as far as this relation is concerned, ये कम हो, ये वैल्यू ज्यादा होगा मैथमेटिकली. अब इस E2 को हम इधर नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए कहा जाता है by using this two level system E1 and E2 only. But the down part is really not visible to me, sir. इधर आ जा, इधर बैठ जा, चेयर लगा. Thank you. अब इसको मैं ऊपर नहीं कर सकता, इसको मैं हटा नहीं सकता. हाँ, ये चेयर इधर कर ले ऐसा, है ना? वो चेयर उस साइड में भी होगा, उस साइड में भी होगा एक चेयर उस पार ले. So in one line we can write by using two level system
one cannot get laser. Why? Because the population inversion condition cannot be maintained. So population inversion condition cannot be maintained, cannot be fulfilled. That's why. told you again. So cannot be maintained. That's why. ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, मींस हमें लेजर नहीं मिल सकता, तो पॉपुलेशन सिर्फ 2 लेवल का इस्तेमाल करते हुए हम लेजर नहीं प्राप्त कर सकते। कभी-कभी लॉजिकल क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, व्हाई यू कैन नॉट गेट लेजर बाय यूजिंग 2 लेवल सिस्टम, बिकॉज़ दिस second and important condition, that population inversion condition cannot be maintained, cannot be fulfilled by this Okay, so what is the solution? Solution is we have to increase the numbers of levels. ये जो E1 और E2 2 लेवल खींच करके सिर्फ हम मैकेनिज्म को समझा सकते हैं और फंडामेंटल लेजर का समझ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लेजर लाने के लिए 2 लेवल पॉसिबल है। Then we increase the numbers of levels. Then एक और एनर्जी लेवल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। So this is another energy level introduced in between, which is known as metastable level. So one metastable level, it is introduced between this ground state and higher energy level, and now the nomenclature will be this E1, this is the ground state, and this is now this will be E2, and this will be now. Yes, sir. Can you please allow me to sit there for a class, sir, please? And मेरे चेयर में सर मैं अथॉरिटी को भी मानना सर, तो उस चेयर को उधर ले आ, थोड़ा वहाँ समझ, बेइज्जती मत कर रहा है। सर ये इसका मतलब ये नहीं है, हाँ उधर सर पॉइंट मारना पड़ेगा। हाँ उसको चेयर को उधर रखो। सही आइडिया है। इंजीनियर होकर के ये सारे आइडिया तुम्हें लगाना चाहिए, मुझे आइडिया नहीं देना चाहिए। हाँ तो तेरे को एक आइडिया दिया, वो आइडिया भी तेरा फुलफिल नहीं हुआ कि तूने चेयर तोड़ दिया, उसको ऐसे उठा के ले आया, उसको खींचते हुए लाना था, उसमें चक्का लगा हुआ है। हाँ सर वो तो है सर, लेकिन मैं तो चलिए गाइड ले आता हूँ ना सर, क्लास ले रहेगा इजी। इंजीनियर को इस तरह की प्रॉब्लम ये नहीं होती। सो E1, E2 and E3 we have 3 level system now. This is 3 level system, and this is used in solid state laser. So इस जो भी एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ लेजर यू नीड टू दिस। तो हर मैकेनिज्म का हर पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 लेवल सिस्टम मैंने यूज किया। दिस इज अ 3 लेवल सिस्टम सॉलिड स्टेट लेजर। ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ग्राउंड स्टेट। हम यहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने अभी तक शुरू किया, इसलिए मैं इसको मिटाया नहीं हूं, मैंने जस्ट बीच में एक लाइन मैंने खींच दिया। So we will start from this ground state, and also we will use that laser terminology. मैं कहीं पर ऐसे नंबर ऑफ एटम इस तरह बातें नहीं करने वाला हूँ, है ना? Just I will use that laser terminology. So I will start from this ground state. So in the ground state we have population is N1. When we give energy, और ध्यान से इसको लेना, तुमको अपने सेंटेंस में फिर इसको लिखने आना चाहिए। So we are starting from this ground state where we have the population that is equivalent to N1. And why this population is here? Because all these population have energy equal to E1. That's why all these atoms are this population is here. So when we give energy, this Q nu, by using a proper pumping technique, the second terminology pumping technique I am using. So by giving this energy by using a proper pumping technique, out of N1 population, N2 populations are excited at higher energy level by absorption transition. So process number first हो गया. Process number first is what? Out of N1 population, N2 populations are excited up to higher energy level by this absorption transition.
by absorbing this energy which is given by using a particular pumping technique. तो जिस पंपिंग टेक्निक स्पेशली दैट, जैसे यहाँ पे 3 लेवल सिस्टम मैंने कहा, सॉलिड लेजर मैंने कहा, सॉलिड लेजर के लिए मैंने कह दिया कि भाई हम लोग जेनान या रेडान फ्लैश ट्यूब हम यूज करते हैं। यहाँ अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर जेनान या रेडान फ्लैश ट्यूब से हमने उसको एनर्जी दिया। सो प्रॉपर पंपिंग टेक्निक से हमने यहाँ पर इसको एनर्जी दिया, ये एटम्स ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच गया। प्रोसेस नंबर 1 कंप्लीटेड। एंड ऑब्वियसली हियर हमने इसको चेंज नहीं किया, लेवल सेम है। सो हियर इट्स अ लाइफ टाइम इज 10⁻⁸ सेकंड। So the lifetime of these atoms, these are the 10⁻⁸ second, and there is some probability, इसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, there is some probability of spontaneous transition, spontaneous transition की probability होगी, but the maximum population, maximum atoms are accumulated here in these E2. This is the metastable energy level by a non-radiative transition. Non-radiative so by using a non-radiative transition, maximum atoms are accumulated here in this metastable energy level E2. This is step number 3. So first atoms population ground state से higher energy level पे गया by absorbing this photonic energy, by using that proper pumping techniques to absorption transition. Second, there is some probability of spontaneous transition through which we are getting some photons, random photons, but the maximum populations are accumulated here in this E2. This is the metastable energy level through non-radiative transition. Non-radiative इसलिए क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई फोटॉन इमिट नहीं होता, इसलिए इसको नॉन रेडिएटिव टर्म यूज किया गया। नॉन रेडिएटिव, देयर इज नो इमिशन ऑफ फोटॉन, स्लाइटली चेंज इन द एनर्जी। सो हायर एनर्जी लेवल से मैक्सिमम एटम्स आर एक्युमुलेटेड हियर थ्रू दिस नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एनर्जी वैल्यू, एनर्जी गैप इतना था, अब एनर्जी गैप कम हो गया। हमने कहा था कि एनर्जी गैप कम होने से लाइफ टाइम बढ़ेगा। यहाँ पर लाइफ टाइम की वैल्यू 10⁻⁸ सेकंड है, यहाँ पर लाइफ टाइम की वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। So since energy difference is reducing, its lifetime enhanced up to this tau. This is enhanced up to 10⁻⁴ to 10⁻³ seconds. Make neat and clean ray diagram. Remember this. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या हो रहा है, तो तुमको अपने सेंटेंस में लिखना है और उसको बनाना है। बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स में है। E1 में एटम था, पॉपुलेशन था N1, हमने एनर्जी दिया एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन के थ्रू आउट ऑफ N1 N2 atoms are excited up to higher energy level, that is E3 now. This is the excited state E3 through absorption transition. Here it's a lifetime is 10⁻⁸ second. There is some probability of spontaneous transition. Spontaneous transition की probability को अवॉइड नहीं किया जा सकता, आप चाहे कितनी भी सावधानी बरतें। So there is some probability of spontaneous transition, but the maximum atoms, maximum populations are accumulated here in this E2. Which one is actually that metastable? मैंने यहाँ पे जो लाइन खींचा है, ये सॉलिड लाइंस मैंने खींचा है, ये फिक्स्ड है, स्टेबल एनर्जी लेवल्स है। इसको मैंने डॉटेड लाइन इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, जस्ट डॉटेड लाइन मैंने यूज किया। इसका मतलब ये कि मेटास्टेबल एनर्जी लेवल। मेटास्टेबल इसलिए क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसका पोजीशन फिक्स नहीं है। इसके साथ-साथ इसको इसलिए मैंने यहाँ पर जो लाइफ टाइम जो दिया है, मैंने ये लाइफ टाइम मैंने रेंज मेंशन किया है। उसको मैंने ऐसा नहीं किया कि एकदम फिक्स वैल्यू, ऐसा नहीं किया। यहाँ पे मैंने फिक्स वैल्यू कहा, दिस लाइफ टाइम इट मैंने सेट सेकंड, दिस इज फिक्स्ड। Why? Because these energy levels are fixed, energy difference is fixed. But here, this is metastable, में से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है, so लाइफ टाइम जो है बढ़ जाएगा। So the lifetime is enhanced up to 10⁻⁴ to 10⁻³ seconds. Means there is an enhancement of more than 10,000 times. यहाँ पर 10⁻⁸ था, ये 10⁻⁴ to 10⁻³ seconds हो गया है। So there is an enhancement in the lifetime more than 10,000 times. इतना ज्यादा enhancement है। अब जब लाइफ टाइम बढ़ गया, obviously population condition maintain होगा। So the population inversion condition is maintained in between E2 and E1. अब यहाँ पर E1 और E2 के बीच में population inversion condition maintain हो गया। दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गया। पहला कंडीशन हमने एनर्जी ज्यादा देना था, यहाँ पर हमने एनर्जी ज्यादा दिया। कंडीशन नंबर फर्स्ट इज फुलफिल्ड।
Second condition, population condition maintain होना चाहिए था. Population condition is maintained in between this E1 and this metastable energy level 2. Integration population condition. अब ये जो एनर्जी स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन थे यहाँ पे देते थे वो अब यहाँ पे नहीं देना, ये किसी काम का नहीं. We give one photon, this photonic energy to the atoms of this E2 energy level. ये E2 energy level का जो एटम्स हैं जो पॉपुलेशन कंडीशन मेंटेन करके बैठे हैं, इसको हमने एनर्जी दिया, फोटोनिक एनर्जी दिया. स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन स्टार्ट्स. Stimulated transition start, and this stimulated transition is actually the chain reaction. ये chain reaction है. जैसे एक बार stimulated transition start हुआ, chain reaction आगे प्रोसेस बढ़ने लगता है, and the numbers of photons increase. इतने abundant numbers of photons increase हो जाते हैं, इसकी intensity high हो जाती है, and that high intense beam, this is known as laser. उसको laser कहा जाता है. Two levels in between laser is releasing are known as lasing level. दो लेवल जिनके बीच में लेजर में मिलता है उसको लेजिंग लेवल्स कहते हैं. So here this E1, this is lower lasing level. This is lower lasing level, and this is upper lasing level. सर. यस, बोलो सर, वो मेटा स्टेबल लेवल का टाइम एकदम से 1000 टाइम बढ़ कैसे गया? मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन से, दिस इज द कैलकुलेटेड वन. यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी गैप ज्यादा है, यहाँ पर एनर्जी गैप कम हुआ, तो एनर्जी गैप कम होने से उसका लाइफ टाइम जो है वो बढ़ जाता है. दिस इज द मैकेनिज्म, और ये एनहांसमेंट मोर देन 10,000 टाइम्स होता है ना. सो दिस इज बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द एनर्जी गैप इन बिटवीन टू लेवल्स. ओके, सो दिस इज 3 लेवल सिस्टम यूज्ड इन सॉलिड स्टेट लेजर. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कहाँ इसका क्या हो रहा है, क्योंकि ये तुमको बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए. मैं किसी चीज को नहीं चाहता कि इसको कोई चीज सारी ला हिला कर रटा जाए. तुमको समझ में आना चाहिए और अपने सेंटेंस में तुमको लिखते बनना चाहिए. प्रोसेस सिंपल सा है, तुम्हारे सामने रखा हुआ है. तुमने 3 प्रकार का मैकेनिज्म पढ़ा है लेजर ऑब्टेनिंग कंडीशन लेजर के लिए. उन तीनों मैकेनिज्म को डिफरेंट लेवल पर यहाँ पे तुमको बताना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है. साथ ही साथ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन से तुमको लेजर मिलता है, तो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन में कैसे चेन रिएक्शन होता है और आगे इससे लेजर मिलता है, ये तुमको मेंशन करना है. तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस ग्राउंड स्टेट हर बार की तरह. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस N1 population is here. By using a proper pumping technique, we give energy. By absorbing this energy through absorption transition out of N1 population into populations are excited up to higher energy level. जैसे हायर एनर्जी लेवल की बात करेंगे, वहां पे लाइफ टाइम भी लिखेंगे. देयर द लाइफ टाइम ऑफ दीस एटम्स, दीस आर ओनली 10⁻⁸ सेकंड. साथ ही साथ ये सेकंड जो प्रोसेस है इसकी प्रोबेबिलिटी भी हम नकार नहीं सकते. दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट मैकेनिज्म. सो देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन. सम, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हो ही रहा है. देयर इज सम प्रोबेबिलिटी. सो देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन. कुछ एटम तो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन से यहां गए, बाकी जो एटम है उसमें स्लाइटली एनर्जी गैप कम होता है. And through non-radiative transition, the maximum atoms are accumulated here in this E2. This is the metastable energy level. Here, this transition is a non-radiative transition. Non-radiative इसलिए क्योंकि इसमें कोई फोटॉन नहीं निकलता. So this is non-radiative transition. And here, since energy gap यहाँ से यहाँ तक energy gap ज्यादा था, energy gap कम हो गया. So by using that Heisenberg's uncertainty relation, energy, the lifetime, it is enhanced, and there is an enhancement of more than 10,000 times is here. So tau becomes 10⁻⁴ to 10⁻³ seconds. tau की जो वैल्यू है वो इतना ज्यादा हो जाता है. अब ज्यादा हो गया
तो ऑब्वियसली आधे से अधिक एटम जो है वो यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएगा विद कंपेयर टू दिस ग्राउंड स्टेट, क्योंकि वहां पे उसका रिटेनिंग टाइम ज्यादा हो गया है। So आधे से अधिक एटम एक्युमुलेट हो रहा है, मतलब population emission condition is maintained. So the population emission condition is fulfilled in between E1 and E2. This is written. E2 और E1 के बीच में population emission condition fulfilled हुआ। जैसे हम यहाँ पर एक फोटॉन देते हैं, when we give one photon here to the atoms of this metastable level, this stimulated transition starts. This is a switching photon. Stimulated transition starts, and this is the chain reaction through which we get abundant numbers of photons. हमारे पास बहुत सारे photons मिलते हैं moving in the same direction, which is finally converting in form of laser. We are getting laser. Two levels in between we are getting laser. They are known as the lasing level. This is lower lasing level, lower H E1 lower lasing level, and this one is the higher lasing level. इसके दो ड्रॉबैक हैं। फर्स्ट ये है, so drawbacks of this. So limitations or drawbacks. First, its efficiency is too less. Its efficiency is very less. Its efficiency is too less. बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी दे रहे हैं लेकिन आउटपुट हमें कम मात्रा में मिल रहा है। So its efficiency is too less. Second, we get pulsed form laser. हमको जो लेजर मिलता है ये पल्स के फॉर्म में मिलता है, कंटिन्यूस लेजर नहीं मिलता। पल्स के फॉर्म में क्यों? यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे एटम दिया, एटम यहाँ पहुंच गया, ग्राउंड स्टेट में एटम आने लगा। जैसे यहाँ पे एटम आता है फिर से तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है, यहाँ से एनर्जी दिया फिर हायर एनर्जी लेके जाएगा। लेकिन जिस रेट से एटम यहाँ से यहाँ पहुंचता है उस रेट से एटम की सप्लाई नहीं होती, चैन रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो जिस रेट से एटम यहाँ से यहाँ पहुंचता है उस रेट से ऊपर से एटम की सप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यहाँ इसको तुमने फोटॉन देकर के इसको फास्ट कर दिया है ना, तो यहाँ पर बीच बीच में पॉपुलेशन एमिशन कंडीशन फेल हो जाता है। जब जब पॉपुलेशन एमिशन कंडीशन फेल होगा लेजर मिलना बंद हो जाएगा, है ना। तो जब पॉपुलेशन एमिशन कंडीशन फुलफिल होगा आपको लेजर मिलेगा। जैसे तो फेल हुआ, गैप आ गया, फिर से पॉपुलेशन एमिशन कंडीशन मेंटेन हुआ, फिर से आपको लेजर मिलेगा। तो इसलिए ये पल्स के फॉर्म में रुक रुक करके लेजर मिलता है, कंटिन्यूस बीम नहीं मिलता है। तो ये जो 3 लेवल सिस्टम से सॉलिड स्टेट लेजर जो मोस्टली जो 3 लेवल सिस्टम से जिसका मैकेनिज्म समझाया जाता है वो आपको पल्स के फॉर्म में लेजर देता है। दिस इज द ड्रॉबैक एंड इट्स एफिशिएंसी इज लेस। ये दो ड्रॉबैक है। अब इसको ओवरकम करना है भाई, ये तो लिमिटेशन हो गया। अगर इसको ओवरकम करना है तो हमें थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। देन वी हैव अनदर लेवल व्हिच वन इज द 4 लेवल सिस्टम। ये 3 लेवल सिस्टम हुआ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, मैं सीरीज लिख देता हूं क्योंकि तगड़ा होने लगेगा नहीं तो। So next one is 4 level system. हमने पहले 2 लेवल सिस्टम देखा। 2 लेवल सिस्टम में हमको लेजर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसमें पॉपुलेशन कंडीशन मेंटेन नहीं होता। 3 लेवल सिस्टम में हमें लेजर मिल रहा है, लेकिन उसकी डिफिशियंसी यही है कि उसमें एफिशिएंसी बहुत कम है, साथ ही साथ आपको पल्स के फॉर्म में लेजर मिल रहा है। दिस इज द डिफिशियंसी। अब उसको फुलफिल करने के लिए वी नीड अ 4 लेवल सिस्टम। सो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ग्राउंड स्टेट E1। हियर द पॉपुलेशन ऑफ एटम्स दीस आर N1। 4 लेवल है तो हायर एनर्जी लेवल दैट विल बी, दिस इज E4। 4 लेवल है तो E4 तक पहुंचेगा। 3 लेवल था 3 लेवल तक। एंड वी हैव 2 metastable levels. This is E2, another metastable level, and this is that E3. These are the metastable level. And that line is the feature of the metastable level. Okay, so this is 4 level system. This is fixed energy level E1, and this higher energy level that is E4 is fixed. In between, we have 2 metastable levels that is E2 and E3. We will start from the same point. At ground state E1 we have N1 population,
when we give energy through using proper pumping technique, this is that energy given through absorption transition out of N1 population, N2 populations are excited up to higher energy level. Just line by line, same statement. So ground state say population higher energy level पे चला गया, but here that higher energy level is E4. Out of N1, N2 populations are excited. And again here, its lifetime will be mentioned as equal to 10 to the minus 4 seconds. 10 to the minus 8 seconds. Okay, and there is some probability of spontaneous transition. So there is some probability of spontaneous transition. And the maximum atoms are accumulated here in this metastable level through a non-radiative transition. So through non-radiative transition, maximum atoms are accumulated here in this E3, that metastable level, this metastable level. So this is metastable level. This is also the metastable level. So maximum atoms are accumulated here in this E3, the metastable level, through non-radiative transition. There is no emission probability. उसमें कोई फोटॉन निकलता नहीं. अब नेक्स्ट स्टेप आता है पॉपुलेशन इनवर्सन कंडीशन फुलफिल होना. यहाँ पर ये जो E2 एनर्जी लेवल है ये टोटली एम्प्टी है, नथिंग इज देयर. So the population inversion condition is maintained in between these E3 and E2. एक एटम भी अगर कोई यहाँ पे आके पॉपुलेशन इनवर्सन कंडीशन फुलफिल करे, ये अच्छी बात है. इसके साथ पहले हमारा कंपैरिजन था यहाँ से, तो इसके साथ कंपेयर करते थे, लेकिन बीच में एक एनर्जी लेवल और आगे जो कि मेटास्टेबल लेवल है जो कि एम्प्टी है. So the population inversion condition is maintained in between E3 and E2. अब जब population inversion condition maintain हो गया, then we give one external photon to the atoms of this metastable energy level E3. Stimulated transition starts. Stimulated transition starts, and this is converted into a chain reaction through which we get laser. And here now we have atoms, and by a slow process these atoms will come back to the ground state. ये रिएक्शन चलते रहता है, कंटिन्यूअस चलते रहता है. ग्राउंड स्टेट सारी एनर्जी लेवल पे एटम जाएगा, एटम यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर नीचे आएगा, एनर्जी देने का क्रम चलता रहता है. तो ये एनर्जी यहाँ पे हम देते जाते हैं और यहाँ पर ये लेजर के फॉर्म में निकलते रहता है. यहाँ पे पॉपुलेशन इनवर्सन कंडीशन हमेशा मेंटेन रहता है, मतलब आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में लेजर मिलेगा. Okay, two levels in between we are getting laser are known as lasing level. So this E3, this is known as upper lasing level. So this is upper lasing level, and here this is lower lasing level. तो जो लेवल, दो लेवल जिनके बीच में लेजर्स मिलता है उसको लेजिंग लेवल कहते हैं. So this is upper lasing level and this one is the lower lasing level. Okay, so this is the 4-level system used in gaseous laser. ये gaseous laser में यूज किया जाता है, मतलब gaseous laser जो है वो हमें continuous laser मिलता है. solid state laser जो है वो pulse के फॉर्म में laser मिलता है. Okay, any doubt? Any question? Is it clear? So the energy level पे lifetime क्या होगी? Yes, you have to write its lifetime tau. It is enhanced up to 10 or 4 to 10 to minus 3 seconds. The same. So the lifetime is enhanced up to 10 to minus 4 to 10
10⁻³ सेकंड। तो सेकंड E2 पे कुछ नहीं होगा। E2 पे बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है क्योंकि एनर्जी के बहुत कम हो गया, इसलिए स्लो प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ पर लाइफ टाइम बहुत बढ़ जाती है, फिर आराम से धीरे धीरे पहुंचते रहते हैं। किसी को कुछ पूछना नहीं है? हो गया? निशान गुप्ता। वो स्लो जा रहा है नीचे से, तो Yes, sir. नीचे तो वो मिलेगा ना अपने को पल्स के वाले में। नहीं, पल्स के फॉर्म में तो डायरेक्ट एटम जो है वो यहाँ से यहाँ पहुंच रहा था, लेकिन यहाँ पर एटम जो है वो E2 में पहुंच रहा है, तो ये इन दोनों इसमें पॉपुलेशन कंडीशन हमेशा मेंटेन रहता है ना। इसके बाद फिर धीरे धीरे एटम स्लो का मतलब इतना ये नहीं है कि भाई एटम यहाँ पर खत्म ही हो जाए, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर मटेरियल है, इतना भी स्लो नहीं होता, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में रहता है। साथ ही चूंकि गैसियस लेजर, और गैसियस लेजर के साथ एक अच्छी बात ये बेटा कि इसका हर एनर्जी लेवल मेटास्टेबल लेवल होता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस एटम है, कभी यहाँ पे रहेगा, कभी यहाँ पे रहेगा, कभी यहाँ पे रहेगा, कभी यहाँ पे रहेगा। तो इसका हर एनर्जी लेवल जो है मेटास्टेबल लेवल। जब टाइप्स ऑफ लेजर पढ़ेंगे, हीलियम नियॉन लेजर पढ़ेंगे, तो वहां पे हम बनाएंगे कि कैसे सारे एनर्जी लेवल्स मेटास्टेबल्स हैं, और किसी भी लेवल जिनके बीच में पॉपुलेशन इनर्शन कंडीशन अगर मेंटेन होता है, वहां पर हमें लेजर मिलना शुरू हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग इन this 4 level system as well as this gaseous laser कि इसके metastable levels बहुत सारे हैं। तो this E1 is the fixed energy level so far। यहाँ से हमने शुरू किया था प्रोसेस, और एटम जो है वो यहीं पे आ जाता है। अब इसको आप कंपेयर करना चाहोगे 3 level system के साथ, so you can write its efficiency is better than 3 level system। अब यहाँ पे एकदम बहुत ज्यादा होता है कि भी नहीं कह सकते, सिर्फ हम कंपेयर कर सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी कम होती है अगर इंडिविजुअल कंपेयर किया जाए, बट अगर कोई 3 लेवल सिस्टम के साथ कंपेयर किया जाए तो इट्स एफिशिएंसी इज इट्स बेटर देन 3 लेवल सिस्टम। एंड नेक्स्ट वन कैन गेट कंटीन्यूअस लेजर। कभी-कभी लॉजिकल क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है, हाउ कैन यू से दैट 4 level system is better than 3 level system? One question is asked in maybe 3 to 4 marks. How you can say or prove that 4 level system is better than 3 level system? Then you have to discuss about 3 level system and 4 level system separately, and you have to mention that drawbacks or limitations of 3 level system. Two limitations: efficiency is too less. Second, it emits pulse form laser. आपको फिर 4 level system उसको बताना है भाई its efficiency is better than the 3 level system, as well as we are getting continuous laser. That's why this 4 level system is much better than 3 level system. So this is that. Okay, clear? आगे बढ़े? हाँ, गौरव बोलो। सर प्रैक्टिकली वो करें तो इतना सारा मटेरियल लग रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे एक्सपेंसिव होना चाहिए। हाँ, तो ये हीलियम नियॉन लेजर या सॉलिड स्टेट लेजर प्रैक्टिकल लेवल पे एक्सपेंसिव होता है। तो वो खिलौना लेजर इतना इजीली, हाँ, लेजर जो है वो इतना सस्ता नहीं मिलता है। 100-150 में जो आता है खिलौना वाला, उसमें कुछ और होता है। वो तो सेमीकंडक्टिंग लेजर है, सेमीकंडक्टर बहुत सस्ता होता है। हम उस सेमीकंडक्टर लेजर में पहुंचे, जब टाइप्स ऑफ लेजर पढ़ते रहेंगे ना, तो टाइप्स ऑफ लेजर में हम सेमीकंडक्टर लेजर पढ़ेंगे, उस समय बताएंगे। वो सस्ता पड़ता है सेमीकंडक्टर, उसमें तो आपको सिर्फ एक बैटरी लगाना है, सेमीकंडक्टर यूज करना है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस होता है, वो रिलेटिवली सस्ता पड़ता है। सर और इसका रेंज कितना होता होगा, मतलब कितने दूर तक लेजर दे सकता है? ये तो डिपेंड करता है भाई उसके इंटेंसिटी के ऊपर। हाँ, जितना दूर तक आप उसको ले जाना चाहते हो, विजिबल रेंज के हो। साथ में और तुम्हारे साथ गौरव कोई और पढ़ रही है क्या? किसी को और आवाज आ रही है? अरे सो गाना चला के रख रहे हो, मूवी चला रहे हो? नोटिफिकेशन सर। अच्छा, नोटिफिकेशन चला रहे हो। Anyway, so this is 3 level system and 4 level system. We have compared this 4 level system with 3 level system. अब यहाँ पे देखें, लेजर प्रैक्टिकली ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास जो मैकेनिज्म होना था वो मैकेनिज्म हो गया, जो कंडीशन होता वो कंडीशंस हो गया। प्रैक्टिकली हमने ये भी प्रूव कर दिया कि स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन ज्यादा से ज्यादा हो तो हमें लेजर अच्छे से मिल सकता है। पॉपुलेशन कंडीशन कैसे फुलफिल कराया जा सकता है, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन अभी भी एक चीज की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि हमने ये कह दिया कि पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन फुलफिल होने के बाद we give one external photon to start stimulated transition.
ये कहाँ से आएगा? कह तो दिए कि भाई 3 लेवल सिस्टम 4 लेवल सिस्टम ऐसे होगा, एक्टिव सेंटर्स ये है, एक्टिव मीडियम ये है, पॉपुलेशन कंडीशन भी मेंटेन करा दिए बाय यूजिंग 3 लेवल 4 लेवल सिस्टम. बट आफ्टर अटेनिंग दिस पॉपुलेशन कंडीशन, हमने कहा कि we give one external photon or we give one photon to the atoms of this metastable energy level to initiate, to start this stimulated transition. भाई एक स्टार्ट करने के लिए एक फोटॉन देने की जरूरत है. एक फोटॉन से अगर तुमने स्टार्ट कर दिया तो फिर वो प्रोसेस कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये चैन रिएक्शन है. लेकिन ये फोटॉन आएगा कहाँ से? दिस इज बिग क्वेश्चन, बिग डील, एंड आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक तुम लोग सोचते रहो. कहीं जुगाड़ हो सकता है क्या इस फोटॉन का? बाहर से माचिस मारोगे, टार्च जलाओगे, कहाँ से दोगे? सर टॉर्च वाला मैं सोच रहा था. टार्च वाला आइडिया अच्छा है. सनलाइट से लाओगे, मतलब तुम लेजर को चालू करने के लिए पहले अपने लेजर डिवाइस को सनलाइट पे ही करोगे. अल्फा पार्टिकल भी भेज सकते हैं. अल्फा पार्टिकल इट्स अ पार्टिकल यार. ये तुम इसको फोटॉन के साथ कैसे कोरिलेट कर रहे हो? सभी एफिशिएंट तो इस्तेमाल हुआ था ना. अच्छा, एनर्जी दे रहा हूं मैंने. यहाँ पर फोटॉन की बात की है, ये फोटॉन की एनर्जी है ना. दिस इज द फोटॉन. लाइट है, लाइट को लेजर के साथ में क्या है, लाइट को लाइट के थ्रू स्टिमुलेट करना है. सो यू हैव टू स्टार्ट दिस स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन विथ रेडिएशन, विथ लाइट इटसेल्फ. इंटरनली अरेंज करना पड़ेगा, बाहर से तो नहीं देंगे, इंटरनली अरेंज करना पड़ेगा. अब ये इंटरनली जो हमारे पास कुछ फोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रोड लगा के करंट करके ऐसा टाइप का कुछ, मतलब इलेक्ट्रोड लगा के करंट लगा के करेंगे तो उससे लाइट निकलेगा. अच्छा, स्पार्क करोगे उसके लिए, है ना. इंटरनली जो है 2 इलेक्ट्रोड लगा दोगे और 2 इलेक्ट्रोड लगा के उसको स्पार्क करोगे. पहले भी जब पंपिंग टेक्निक लगाएंगे, जैसे गैसेस 4 लेवल सिस्टम में पंपिंग टेक्निक में तो यही किया जाएगा, गैस को आयनाइज किया जाएगा, है ना, हाई पोटेंशियल लगा करके. और कोई आइडिया? सस्ता सुंदर टिकाऊ आइडिया बताओ यार. बहुत खर्चीला आइडिया बता रहे हो. हाई पोटेंशियल सिस्टम ही खर्चीला है सर. हाँ, और कोई? हमारे पास कुछ फोटॉन्स हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं. कौन सा? यस. सो हमारे पास कुछ फोटॉन्स है जिसको हमने बेइज्जती करके रखा हुआ है, एंड दैट फोटॉन्स इमिटेड थ्रू दिस स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन. हमने कहा था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से हमें फोटॉन्स मिलते हैं, है ना. ये फोटॉन्स यूजलेस है, किसी काम का नहीं है. हाँ, now we have to use these photons emitting through spontaneous process, but the problem is still same, क्योंकि ये सारे फोटॉन्स रैंडम है. हाँ, यस, ये सारे फोटॉन्स जो है वो रैंडम है. अगर आपने इस फोटॉन्स को एसिटी से अगर यूज किया तो एक फोटॉन जो कि एक्स एक्सिस में जा रहा है वो एक्स एक्सिस में चैन रिएक्शन स्टार्ट करेगा. दूसरा फोटॉन जो वाई एक्सिस में रैंडम है तो वाई डायरेक्शन पे एक चैन रिएक्शन स्टार्ट करेगा. तीसरा माइनस वाई में, जेड में, तो सारे डायरेक्शन पे वो फुलझड़ी की तरह लेजर निकलेगा, है ना. जैसे पटाखे जलाते हैं, ऊपर जाकर के सारे डायरेक्शंस पे ऐसा निकलता है ना, वैसे ही लेजर जो है वो भी एसिटीज यूज करेंगे इस फोटॉन्स को, तो वो जाकर के सब डायरेक्शन पे एक चैन रिएक्शन स्टार्ट करेगा और अल्टीमेटली यू विल गेट फुलझड़ी टाइप लेजर. नॉर्मल लाइट. Yeah, that will be some sort of normal. No, but just better than normal light, but फुलझड़ी की तरह ऐसा. Anyway, so before giving these photons, we have to control again. ये uncontrolled process है, इसको control मिलाना पड़ेगा. So in the next class, we will discuss how to control these photons which is emitting through this spontaneous process. So in this class, we have discussed 2-level system, 3-level system, and 4-level system. 2-level सिस्टम से हमको लेजर नहीं मिल सकता क्योंकि इसमें पॉपुलेशन कंडीशन मेंटेन नहीं होता. 3-level सिस्टम में हमको लेजर मिलता है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक यही है कि ये पल्स के फॉर्म में लेजर देता है, साथ ही साथ इसकी एफिशिएंसी 2 लेग्स बहुत कम है. और 4-level सिस्टम में आपको कंटिन्यूस लेजर मिलता है और साथ ही साथ इसकी एफिशिएंसी इट इज ग्रेटर देन 3-level सिस्टम. ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडेस क्लास. थैंक यू. कुछ बोल रहे हो गौरव तुम? नहीं सर, हो गया. Okay, good.